Gauss divergence theorem, and today we'll do some more questions on Gauss divergence theorem. So write a question. Find surface integral f dot n cap ds, where f is equal to 2x plus 3z I minus xz plus ij plus y square plus 2z k, and S is the surface of the sphere having center at 3, -1, 2 and radius 3. ठीक है, तो गॉस हमें सरफेस इंटीग्रल निकालना है. तो यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, this f dot n cap ds, this is equal to triple volume integral of divergence of f dv. Now calculate the divergence of f. जल्दी निकालो. क्या आया डाइवर्जेंस? जल्दी बोलो. मैम 3z I कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. डाइवर्जेंस तो एक स्केलर वैल्यू आएगी ना. यस मैम. मैम क्या सॉरी, फाइव आ रहा. I j k 5 आ रहा है, 3 आ रहा है मैम. 3 आ रहा है. तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया. अभी इतना वेक्टर एनालिसिस पढ़ने के बाद अब इसमें सिर्फ स्टोक्स थ्योरम बाकी है, फिर ये यूनिट भी खत्म हो जाएगा. तुम लोगों ने क्वेश्चन नहीं लगाना शुरू किए हैं. अभी डाइवर्जेंस और कर्ल नहीं निकाल पा रहे हो. सॉरी मैम, उल्टा हो गया, कर निकाल दिया. तो ये क्या आएगा फिर? दिस इज 3 टाइम्स सिंपल इंटीग्रेशन, तो ये क्या आएगा? 3 टाइम्स v. so this is what? Volume of sphere. Now what is the volume of the sphere जो दिया हुआ है उस हिसाब से? 3 into 36 pi. The radius is given to be 3. Volume will be 4/3 pi r cube.
ठीक. Next question. If f is equal to axi plus byj plus czk, a, b, c are constants, show that double integration f dot ds, this is equal to 4 by 3 pi a plus b plus c, where S is the surface of the unit sphere ठीक. Now you have to calculate f dot n cap ds. This will be divergence of f, means del dot f dv, वॉल्यूम इंटीग्रल. तो डाइवर्जेंस ऑफ f निकाल लो, क्या आया जल्दी से. क्या आया डाइवर्जेंस. A plus B plus C. Yes, ma'am. a plus b plus c dv, volume integral. Now this a plus b plus c is constant, so we get it a plus b plus c into v जब इंटीग्रेट करोगे. Now what is v? v is volume of unit sphere. Unit sphere means radius is 1, so this will be a plus b plus c into 4 by 3 pi. ठीक है. तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हमारा सरफेस इंटीग्रल निकालना इजी हो जा रहा है. अदरवाइज हमें सरफेस इंटीग्रल के जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उनसे ही निकालना पड़ता. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वेक्टर फील्ड f is equal to x square I plus zj plus yzk is defined over the volume of the cuboid given by x varies from 0 to a, y varies from 0 to b, z varies from 0 to c. ठीक. This is the cuboid enclosing the surface S. Evaluate the surface integral f dot n cap ds over the surface S. Now apply Gauss divergence theorem. Always write this using Gauss divergence theorem when you are using Gauss divergence or Green's theorem or Stokes theorem, which we will study next. So by Gauss divergence theorem, what we have?
f dot n cap ds. This is equal to, over the surface S, volume integral divergence of f dv. So calculate the divergence. Divergence क्या हो जाएगा? 2x plus y, and dv is dx dy dz. Now put the limits for x, y and z. These are given. This is from x from 0 to a, y from 0 to b, and z from 0 to c, given in the question. तो इंटीग्रेट कर लो, ए बी सी a plus b by 2 ये आना है. ठीक, क्लियर है? आ रहा है. अब नेक्स्ट एक और वेरिफिकेशन का कर लेते हैं. वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर f is equal to x square minus yz I plus y square minus zx j plus z square minus xy k taken over a rectangular parallelepiped x varies from 0 to a, y varies from 0 to b, and z varies from 0 to c. So first let us draw this rectangular parallelepiped. ठीक है, ये है हमारा रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है. अब इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं. सपोज दिस इज a b c d e f. This is origin and this is g. ठीक, y एक्सिस के अलोंग हमारा j कैप मिलेगा, x एक्सिस के अलोंग हमारा i कैप मिलेगा, और z एक्सिस के अलोंग हमारा k कैप यूनिट वेक्टर मिलेगा. ठीक, अब हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना है. एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन लेना है, तो आप डायरेक्शन भी ड्रॉ कर लो. यहाँ पे ऐसे चलेंगे, फिर ये चले हुए हैं, यहाँ पे ऐसे जाएंगे, इस वाले एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, एक्स एक्सिस के अलोंग चलो. ईडी हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो ऐसे चले. और ये सी बी हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ऐसे चले. फिर सी डी ये जा रही है. सिमिलरली ये वाली
z एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये गई एंड सो ऑन, और ये वाली जा रही है किसके, y एक्सिस के। ठीक, ये हमने डायरेक्शंस ड्रॉ कर लिए। तो अब हमें सरफेस इंटीग्रल निकालना है, तो हमारे यहाँ पे कितने सरफेसेस हैं इस पैरेललोपाइपेड में? 2 तो ऊपर नीचे वाले और 4 ये साइड वाले। ठीक, तो इसके कितने सरफेसेस हुए? 6 सरफेसेस। तो फर्स्ट हम डाइवर्जेंस निकाल लें, वॉल्यूम इंटीग्रल इजी होगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी over the volume V. Now what will be this? Divergence will be, calculate करो, 2x plus y plus z dx dy dz. X varies from 0 to a, y varies from 0 to b, and z varies from 0 to c. So this will be abc, a plus b plus c. Now अब हमें सरफेस इंटीग्रल निकालना है और इसके बराबर शो करना है। Now this f dot n cap ds over the surfaces, this will be f1 s1 s2 s3 कहाँ तक, s6, 6 सर्फेसेस है, तो 6 सर्फेसेस का निकाल के और सबका जोड़ना है टू गेट द फाइनल सरफेस इंटीग्रल। ठीक, मैम अब डिफरेंट सर्फेसेस डिफाइन कर लो। मैम हम्म मैम एक बार वो डायरेक्शन बताना कैसे। एक्सिस के अलोंग ले लो ना। ये डिफरेंट सर्फेसेस में, अब जैसे ये वाली लाइन है एक्स बी, ये किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस का ये डायरेक्शन है तो हमने ये ले लिया। ये वाली लाइन है ओ एक्स, ये तो एक्सिस ही हो गया, एक्स एक्सिस। अब ये वाली लाइन है बी सी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वी टेक द डायरेक्शन दिस, जो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, जो आई कैप का डायरेक्शन है। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि हमें किस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स निकालने हैं। अगर यूनिट वेक्टर्स इसी डायरेक्शन में हुए तो वो आई कैप होगा, और अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो माइनस आई कैप हो जाएगा। तो देयरफॉर डायरेक्शन सारे ड्रॉ कर दिए। ये वाली लाइन है, इसमें ओ ई, इसमें के कैप है यूनिट वेक्टर, तो इसके पैरेलल जितनी भी लाइंस हैं, जैसे जी बी है, सी डी है, तो ये सारी इसी डायरेक्शन में, के कैप के डायरेक्शन में बनी हुई है। क्लियर? ये वाली है, ये इस Yes, डायरेक्शन में जाएगी। तो अब हमने सरफेसेस डिफाइन कर लिए। सरफेस S1 है हमारा ओ ए एफ ई, अपने डायग्राम में देखो। S2 है हमारा वी जी डी सी, S3 है ए एफ जी बी, S4 है ई डी सी ओ। ठीक, S5 सरफेस है ए ओ सी बी, और S6 है एफ ई डी जी, एफ ई डी जी। अपना जो फिगर बना है उसमें देखो, ये 6 सरफेसेस निकली। नाउ अब डिफरेंट सरफेसेस में हमें सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो एफ डॉट एन कैप डी एस निकालना है, किसमें, S1 में। अब S1 में एन कैप क्या होगा ये देखा जाए पहले। S1 इज ए ओ एफ ई, ए ओ एफ ई। ठीक, तो ये ए ओ एफ ई कौन से प्लेन में जा रहा है, ये जो सरफेस है,
ये एक्स जेड प्लेन में जा रहा है। और एक्स जेड प्लेन का यूनिट नॉर्मल वेक्टर कौन सा होगा? J ये cap. जे माइनस जे माइनस जे कैप। यस मैम। This will be unit outward normal will be minus j cap. So ये क्या हो गया? This will be y square minus zx. Now खाली हमें j cap वाला ही लेना है, अदर्स वाले के डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो दिस डॉट माइनस j cap. एंड हम लोग ds क्या हो जाएगा? xz प्लेन में है तो dx dz. x varies from 0 to a and z varies from 0 to c. ठीक, तो निकालो क्या वैल्यू आई। अच्छा, ये याद रखना कि हम लोग एक्स जेड प्लेन में है, तो एक्स जेड प्लेन में वी हैव y इज इक्वल टू 0. So here this y square will be 0. xz plane की इक्वेशन y is equal to 0. वो है मैम भी वो ओरिजिन माइनस जे कैप कैसा है, एक बार फिर बताइएगा तो। यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल। अब इसका यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा? मैम लेकिन किस तरफ से हम लोग डायरेक्शन ले रहे हैं? अच्छा आउटवर्ड, ठीक है मैम, समझ आउटवर्ड गया, लेना है। ठीक है। मैम ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 4। ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4. अब S2 में देखो, S2 में f dot n cap ds निकालना है. Now S2 is BGDC. BGDC का यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल पहले देखें क्या होगा. जे कैप BGDC J कैप होगा, ठीक. और BGDC में y की वैल्यू क्या है? दिस इज v. BGDC की इक्वेशन क्या होगी इस प्लेन की, BGDC की इस सरफेस की? y इज इक्वल टू b Y होगी equal ना. to B. Yes, ma'am. तो दिस विल बी, हमें क्या मिला? f डॉट j कैप मिला, ठीक. एंड put y is equal to b here. So we get b square minus zx. Here y is equal to b. So b square minus zx, and now ds will be dx dz. So this will be 0 to a, 0 to c. बी स्क्वायर ए सी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4. b square ac minus a square c square by 4. Now similarly S3 आगे जिसका होता जा रहा है आगे निकालता जाओ. Now S3 में देखो, S3 में f dot n cap ds निकालना है. Now what is S3? S3 is AFGB. देखो इसमें AFGB ये वाला है, AFGB. Now AFGB में की इक्वेशन क्या होगी?
x इज इक्वल X टू is a। equal to A. और n कैप क्या होगा? I cap. I cap. I I cap. cap. So here we have x is equal to a and n cap is equal to I cap. So this is a square minus yz dy dz. Now y varies from 0 to b and z varies from 0 to c. A square BC minus B square C square by 2. A square bc minus c square b square by 4. Now S4 पे निकालो. S4 is EDCO. EDCO. EDCO इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? x is equal to 0. X is equal to 0. और n कैप क्या होगा? Minus I cap. माइनस आई कैप में हो और आपको माइनस डायरेक्शन पे जाना है. डायरेक्शन निकालने में अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ऐसे चलो. I J K हमें इस डायरेक्शन में चल रहे हैं. ठीक. अब जहां जहां इस डायरेक्शन में होगा, अब जैसे हमें EDCO का निकालना था, अब इसमें क्या है, K का ऊपर है और J का नीचे है, तो हमें सेम किसी एक को एक डायरेक्शन में इसके डायरेक्शन में करना होगा ना. तो ये कि यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस के कैप और जे कैप. तो माइनस के कैप और जे कैप का जब निकालोगे तो क्या मिलेगा, माइनस आई कैप. एक माइनस आ गया ना, एक डायरेक्शन में चलना है. ठीक. चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, किसी एक डायरेक्शन में चलो. ठीक. तो ये वाला डायग्राम याद कर लो जिसको जिसको डायरेक्शन निकालने में दिक्कत हो रही हो. ठीक है. और जहां जहां इसी डायरेक्शन में चलोगे, आई और जे एक ही डायरेक्शन में मिल रहे हैं आपको, वहां पे प्लस साइन के साथ आएगा. ठीक. तो अब इस वाले डायग्राम से जिसको आगे वाले डायरेक्शन निकालना, जिसको जिसको नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्शन निकालना. Now S4 is x is equal to 0 and n cap is minus I cap. So we have to calculate S4 f dot n cap ds. This will be what? yz dy dz. dz y varies from 0 to b and z varies from 0 to c. So this will be c square b square by 4. Now S5. S5 is AOCB. अब देखो इसमें AOCB ये वाला लेना है. ठीक. माइनस तो के कैप. हाँ, AOCB इसमें भी देखो डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, एक डायरेक्शन नहीं है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस आई कैप ले लोगे तो माइनस आई कैप और जे कैप मीन्स आपको माइनस के कैप मिलना है. आई और जे है इसमें तो इसके परपेंडिकुलर आपको के मिलेगा. और यहाँ पे आपकी एक्स वाई प्लेन है, so this is origin passing through origin, so this is z is equal to 0. So we have this z is equal to 0 and n cap is equal to minus k cap. Now S5 f dot n cap ds, this is equal to xy dx dy. X varies from 0 to a, y varies from 0 to b. So this is a square b square by 4. Now S6 में देखो, S6 में क्या है हमारा, FEDG. FEDG ये वाला लिया. ठीक.
तो FEDG में हमारा डायरेक्शन क्या है? प्लस के डायरेक्शन देखो पॉजिटिव आ रहा है, प्लस के कैप यहाँ से चले और यहाँ से चले, प्लस के तो हमें क्या मिलेगा? प्लस के कैप। कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करना पड़ रहा है, सो दिस विल बी प्लस के कैप। And we have Z is equal to C and cap is equal to K cap. So this is F6 F dot N cap ds. This is equal to C square minus XY dx dy. X varies from 0 to A, Y varies from 0 to B. So this is equal to C square AB minus A square B square by 4. Now add all, सारे ऐड कर डालो, A B C A plus B plus C. बस जो चाहिए था वही मिल गया। मैम आ रहा है। यस मैम। A plus B plus C सारे ऐड कर लिए। दिस इज इक्वल टू क्या? डाइवर्जेंस ऑफ F dV, डाइवर्जेंस ऑफ F dV, hence verified. ठीक है, तो काफी क्वेश्चंस करा दिए इसके। अब बाकी क्वेश्चंस खुद से भी करके देखो कुछ। अब हम लोग स्टोक्स थ्योरम पढ़ लें। इस हफ्ते हम थर्सडे और फ्राइडे भी तुम लोग की क्लास लेना चाहते हैं, बिकॉज 2 मंडे की क्लासेस हम नहीं ले पाएंगे, थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे, तो इसीलिए इस हफ्ते थर्सडे और फ्राइडे। मैम तो थर्सडे और फ्राइडे को ऑलरेडी 6 क्लास है मैम। यस मैम 6 क्लास होती है। यस मैम। यस मैम 6 क्लास होती है। हैक्टिक हो मैम जाएगा। अभी क्विज भी है, 3 क्विज है मैम इस वीकेंड में। यस मैम। फिर आगे लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा क्लास। यस हम ले लीजिएगा मैम। यस मैम आगे ले लेना। आगे ले लीजिएगा मैम, अभी अगर लेंगे तो फिर उधर प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे मैम। यस मैम। तो संडे को रख ले, सैटरडे या संडे को। संडे भी है मैम हमारी क्विज। क्विज है। मैम संडे को क्विज है मैम। संडे को क्विज है। सैटरडे को 2 क्विज है, संडे को 1 क्विज है। और पूरे दिन थोड़ी क्विज चलेगी। मैम कितनी बजे से वो क्विज है? क्लब्स के भी वो रहते हैं मैम, शाम क्लास रहते हैं। सैटरडे और संडे मैम प्रोग्रामिंग की क्लास रहती है। मैम क्लब क्लास ही रहती है। उसमें भी 4 घंटे लगते हैं मैम। हर एक रोबोटिक्स की दो क्लास है क्लास मैम। एडजस्ट करनी पड़ेगी, ये 2 क्लास एडजस्ट करनी पड़ेगी। मैम नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे और वेडनेसडे को मैम नेक्स्ट वीक कर दीजिए मैम प्लीज। नेक्स्ट वीक देख लीजिएगा मैम। मैम नेक्स्ट वीक ट्यूसडे और वेडनेसडे को क्लास ले लीजिएगा 1 घंटा एक्स्ट्रा। नहीं, नेक्स्ट वीक ट्यूसडे और वेडनेसडे को, ट्यूसडे को क्या 2 घंटा की क्लास, तो 1 घंटे मैथ्स पढ़ नहीं पाओगे। 2 घंटा में तुम ही लोग कहने लगो कि मैम बहुत हो गया, अब नहीं, अब मत तो मैम ट्यूसडे पढ़ाइए। और वेडनेसडे को किसी और समय ले लीजिएगा अगर खाली हो जाएगा तो। ट्यूसडे और वेडनेसडे तुम लोग की बहुत कम क्लासेस होती हैं क्या? हाँ यस मैम। ट्यूसडे को ले लेना मैम। ट्यूसडे को कितनी बजे से? हाँ मैम। ट्यूसडे को कब खाली रहती है? मैम 3 बजे के बाद। बट जो स्लॉट्स आर डिफरेंट है और आई ग्रुप है। स्लॉट तो हम लोग का डिफरेंट होता है, खाली तो होता है ट्यूसडे और वेडनेसडे को, लेकिन स्लॉट डिफरेंट होता है सबका। रेसेस में ले स्लॉट लीजिएगा मैम। डिफरेंट होता है, इसीलिए कह रेसेस रहे में हैं। ले लीजिएगा। रेसेस में ले लीजिएगा। हैं? 12 के बाद। 12 के बाद 12 से 1 ले लीजिएगा मैम। लंच टाइम में। लंच टाइम में। नहीं तो फिर वो और भी तो दूसरा भी तो ग्रुप है, वो एग्री करेगा। कौन से ग्रुप के बच्चे बोल रहे हैं ये? सारे मैम ऑल। सभी लंच टाइम में। सारे में। यस मैम। मैम बस थर्सडे फ्राइडे मत लीजिए मैम, मैम बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है मैम। मैम ये कौन बोल रहा है? कौन से ग्रुप का है ये? I1 I2 आई ग्रुप। मैम आई आई ग्रुप और बी ग्रुप वाले? हमारा भी वैसे ही रहता है मैम। हमारा भी मैम सेम। मैम थर्सडे हाँ, फ्राइडे मैम। प्लीज एग्जाम्प्ट कर दीजिए। ठीक है चलो, तो थर्सडे फ्राइडे एग्जैक्ट कर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक
ट्यूसडे और वेडनेसडे फिर 1 से 2 भी क्लास लेंगे। ओके मैम। ठीक है मैम। सुबह वाली चलेगी और 1 से 2 भी रहेगी, क्योंकि मंडे वाली हम ऑफ करेंगे, मंडे को एग्जाम है। लेट एस बी अ मैम तो ऐसे कंटिन्यूस चलेंगी या बस एक ही 2 वीक चलेंगी? सिर्फ नेक्स्ट वाले वीक के लिए, बिकॉज नेक्स्ट अभी जो मंडे आएगा, कमिंग मंडे और उसके बाद वाला मंडे, दोनों मंडे में एग्जाम है, और वो एग्जाम थर्ड सेमेस्टर वाला हमारे सब्जेक्ट का है, हमको लेना है, तो इसलिए। और इसमें समय भी तो लगता है ऑनलाइन एग्जाम में, मतलब तुम लोग को नहीं लगता है समय, लेकिन टीचर को तो सबके साथ एंगेज रहना पड़ता है ना। Ma'am, so next week, Tuesday and Wednesday, recess time, we will have 2 maths classes. Yes, next week you will not have class on Monday. Monday class is cancelled, and Tuesday and Wednesday you will have 8 to 9 and 1 to 2, 2 classes, Tuesday and Wednesday. और फिर उसके बाद जो कमिंग मंडे आएगा उसमें भी आपकी क्लास नहीं होगी, और ट्यूसडे को जो ऐसी क्लास चलती ट्यूसडे वेंसडे फिर वैसे ही क्लास चलेगी। मतलब जो 2 क्लास हमारी मंडे वाली मिस हो रही हैं उनको हम एडजस्ट कर रहे हैं बस। So Stokes theorem लिखो। Let X be a piecewise smooth orientable surface bounded by a piecewise smooth simple closed curve। आज का क्या सीन होता है, एक काम ये भी किया जा सकता है, आज भी तो वेंसडे है, तो आज ही आप लोग लंच में एक क्लास ले लो, तो नेक्स्ट वीक खाली एक एक्स्ट्रा लेंगे, थोड़ा कम प्रेशर हो जाएगा नेक्स्ट वीक। मैम बहुत सारा हो जाता है फिर पढ़ने के लिए। मैम आज वो तो 7 जो क्लासेस कोर्स है है मैम वो पढ़ना हमारी। पड़ता, नहीं 1 to 2। यस मैम, आज ले लीजिए। आज भी तो वेंसडे है ना, यस मैम। तो आज एक Yes, एक ma'am. 1 to 2 आज रख लो, और नेक्स्ट वीक में बस एक ही 1 to 2 होगी। ये ज्यादा सही रहेगा। यस मैम। ठीक है, तो आज 1 to 2 एक एक्स्ट्रा क्लास होगी मैथ्स की, इसी में स्टोक्स थ्योरम के क्वेश्चंस कराएंगे। क्लोज्ड कर्व सी, लेट Ma'am, वी then एक्स today and वाई next जेड। Tuesday. अब ट्यूसडे को सुबह क्लास लेना, फिर बता देंगे कि ट्यूसडे को लेंगे कि वेंसडे को लेंगे, जब भी लेंगे 1 to 2 ही लेंगे बस। ठीक है, और मंडे वाली क्लास ऑफ रहेगी 2 वीक। Okay, ma'am. मैम अभी ले लीजिए 9 to 10। 2 घंटा पढ़ नहीं पाओगे मैथ्स, नहीं यार, लैब है परेशान हो जाओगे। वाइवा फ्रॉम 9 to 12। हाँ मैम, अभी मत B1 लीजिएगा। यस मैम। अभी नहीं ले रहे हैं। हाँ, वो 2 घंटा वो वाइवा ना भी होता तो भी आप 2 घंटा नहीं पढ़ पाओगे मैथ्स। हम तो पढ़ा देंगे, फिर खुद ही कहोगे कुछ नहीं समझ में आया। ये सब इजी नहीं है, ये तो हम खुद ही मान रहे हैं। Be a vector function which is continuous Ma'am, can you please show the statement again? Bit up. let S be a piecewise smooth orientable surface bounded by a piecewise smooth closed curve C, and let V equal to xyz, Vxyz is equal to V1 xyz I plus V2 xyz j plus V3 xyz k, be a vector function which is continuous and has continuous first order derivatives. Continuous first order partial derivatives
in a domain which contains S. If C is traversed in the positive direction means counterclockwise direction. Positive direction, then V dot dr, V माना है ना, F नहीं, V dot dr over the closed curve C, this is equal to V dot T ds, and this is equal to surface integral of curl of V dot n cap dA. Now what is where n cap is the unit normal vector to S in the direction of orientation of C, and T is the tangent vector. This T, this is the tangent vector. Now, if you write in terms of components of V, that is V1, V2, V3. So, in terms of components of V, we have closed integral over the closed curve C, V1 xyz dx plus V2 xyz dy plus V3 xyz dz. This is equal to surface integral of del cross V dot n cap dA. अब मेरे ख्याल से इसका प्रूफ अभी पूरा नहीं हो पाएगा, तो हम लोग अभी जब 1 से 2 क्लास लेंगे आज ही, तब इसका प्रूफ और इस पे क्वेश्चंस कर लेंगे. ठीक. So this is all for this time. Next we are going to meet today from 1 to 2.